اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مدنی مذاکرہ، یہ شعر کس کا ہے؟ اختتام پر ضیاء صدقات کی ترغیب، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے گزرے وقت کی جھلک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ معروف صحافی محمود شام کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان آمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تربیتی اجتماعات، پاکستان کے طول و عرض میں کھالیں جمع کرنے کی دلائی گئی ترغیب۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ انڈسٹریل ایریا سائٹ پاک سیدی کابینہ میں مدنی حلقے، فیکٹری مالکان کی شرکت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ براہ راست، سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خود سوالات کیے حاضرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جبکہ سحری و ملاقات کی برکتیں حاصل کیں باپا جان کے ہمراہ اسلامی بھائیوں نے۔ یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ مبارک ایام یعنی 8، 9 اور 10 ذوالحج کے ان ایام میں سے ہیں جن میں کوئی شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 1435 سنہ ہجری کی آج مدینے میں 10ویں شب، میدان عرفات میں 10ویں شب اور پاکستان میں 8ویں شب۔ لاکھوں مسلمان حج سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ 9 تاریخ کا تو روزہ سب نے رکھنا ہے۔ اب تو چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں نا، چھٹیاں ہو گئی نا شروع، اب تو 1-2 دن جو ہے روزے میں گزارو ہے۔ آج ماشاءاللہ بورے والا، جس کو اپنے سین عطار والا بولتے ہیں، وہاں مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول جمع کر لیے انہوں نے۔ بچوں کو سہلانے کے لیے، بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، یہ بولنا کیسا؟ ایک تو یہ بچوں کا دل کمزور کرنے والی بات ہے، بھوت تو ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جو دھمکی دیتے ہیں۔ بھوت کس نے دیکھا؟ ڈراتے ہیں بچوں کو کہ بھوت آ جائے گا، پکڑ لے گا، کھا جائے گا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بچہ بھی پھر جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کو تو بہادر بنانا چاہیے۔ بکروں کو کان سے پکڑ کے چلاتے ہیں، تو کیا یہ کان سے پکڑ کے چلانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ظاہر ٹانگ پکڑ کے تو نہیں چلائیں گے، کان پکڑ کے لیے چلائیں گے۔ اس طرح اس کو بلا وجہ ایزا نہ ہو، اتنا نہ کھینچے کان کے اس کا کان کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ خوبصورت جانور کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جانور کو بھی نظر تو لگ سکتی ہے، یعنی جس عمدہ چیز کو لوگ تعجب کی نظر سے دیکھیں تو نظر لگ سکتی ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر ماشاء اللہ کہا جائے۔ حضرت سیدنا ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے۔ یہ ایک اسلامی بہن نے پیسے جمع کر کے پہلی مرتبہ قربانی کے لیے بکرا خریدا، وہ چھت سے گرا اور انتقال کر گیا، مر گیا وہ بکرا۔ اب یہ بہت اداس ہے، کیا اس کی قربانی ہوگی؟ اللہ اللہ، ہو سکتا ہے اس کی یہ اداسی اس کو 1000 قربانیوں کا ثواب دلا دے، البتہ یہ قربانی ہوئی نہیں،
जो उसूल है शरीयत का, ज़ाहिर है कि वो मर गया, वो वक्त से पहले मर गया, वक्त के अंदर भी मर जाता तो इसको कुर्बानी तो नहीं कहेंगे। की हंसी शाम की देखूं मैं बहारे, मक्के की हंसी शाम की देखूं मैं बहारे, फिर देखूं मदीने की शाह सुबह है दिलारा, शाह बड़ी आस से है तुमको पुकारा। आज आमिर हुसैन से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने नियत भी की कि इंशाल्लाह ताला मैं काफ़िलों में सफ़र करता रहूँगा और दूसरों को भी इसकी तरकीब दिलाऊँगा। पापा से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह बार बार आने की नियत करते हैं और मदनी काफ़िलों में भी सफ़र करेंगे। मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, हर इस्लामी भाइयों को चाहिए इस मदनी चैनल को देखें और खूब खूब नेकियां कमाइए। प्यारा बारो मदनी चैनल ॾिसंदा रहो, इंशाल्लाह इनसां तव्हांखे इलाही फ़ाइदो थींदो। अल्लाह जे हुकुम सां मदनी काफ़िलो में सफ़र करियो, इंशाल्लाह अल्लाह जे हुकुम सां तव्हांखे फ़ाइदो थींदो। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। पापा आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि जब तक जामिया से वाबस्ता है तो ये जहन होता है कि अमल में इजाफे के लिए कुतुब का भी मुताला किया जाता है, लेकिन जब फारिग तहसील मदनी बन जाते हैं तो ये जहन होता है कि अब जो बच्चों को पढ़ाना है उनके अमल में किस अंदाज में इजाफा किया जाए, और देखा जाता है अपने अमल में कमी आती जाती है। अमल को बरकरार रखने के लिए मदनी माहौल जमा मदनी काम, आज़ाद पंछी रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि तरकीब बने। न मदनी माहौल में काम मदनी करते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह तरकीब बयानात होंगे, दर्स करेंगे, खुद भी मालूमात होती रहेगी ना इस तरह। और जब दूसरों को बोलेंगे अमल का तो अपना भी एक गैरत भी तो जागेगी ना, यार मैं सबको बोलता हूँ मैं खुद नहीं करता। तो यूँ तरकीब बनी रहेगी, दोनों काम कर रहा है। जो तालिब इल्म सिर्फ ये जहन रखते हैं कि यार पढ़ो 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 और मदनी बन के बाद में काम करेंगे तो वो बेचारे लटक जाते हैं। जैसे ही मदनी बनेंगे तो माँ बाप बोलेंगे कमा गेला, तो इस तरह वो बेचारा जो है ना वो तरकीब उसकी आउट हो जाती है। तालिब इल्मी के दौर में टाइम बहुत होता है, इसलिए वही मदनी फूल पकड़ लें कि मदनी काम करते हुए मदनी माहौल से वाबस्ता रहे। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने 9 ज़ुल्हज के रोज़े की फजीलत इरशाद फरमाइए, आइए वो आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, यौम अरफा के रोज़े की बड़ी फजीलत है, इसी सूरत से इससे ना छोड़ा जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी शरई मजबूरी है तो कोई बात नहीं है, बहरहाल कोई उज़्र हो तो, वरना रखना चाहिए। हज़रत सैयदना अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सुल्तान मदीना करार क़ल्ब सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल पर गुमान है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहाँ के ताजवर सुल्तान बहर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। यहाँ तक
हदीस पाक के अल्फाज मुकम्मल हुए। अब खुलासा इसका अर्ज किया जाता है, मगर हज करने वाले पर जो अराफात में हैं उन्हें अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के दिन रोज़ा मकरूह है। कि हज़रत सैयदना इब्न खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफे के दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के रोज़ हाजी को अरफात में रोज़ा रखने से मनक़ा फरमाया। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी फूल आपने समाअत फरमाए। बढ़ते हैं अगली मदनी खबर की जानिब। मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार महमूद शाम की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान आमद का सिलसिला हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, इस्लामी भाइयों से मुलाकात की। इस मौके पर मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, आफतों का रुख बदल दे, आफतों का रुख बदल दे और बलाएं इनसे फैल। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हर घड़ी हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, हर घड़ी हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार। काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज फैज़ान मदीना में आने का और यहाँ जो इल्मी तहकीकी काम हो रहा है उसको देखने का इत्तेफाक हुआ। और मुल्क में जो दूसरी जगह एक अफरा तफरी और ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं जिससे एक डिप्रेशन होता है, तो यहाँ आकर एक दिल को तस्कीन हुई कि दीन के लिए भी काम हो रहा है और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की ज़ुबानों में, दूसरे मुल्कों की ज़ुबानों में वहाँ तक इस्लाम का हकीकी मानों में पैगाम पहुँच सके। और मैं दूसरे अपने मीडिया के जो हज़रात हैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि वो भी किसी वक्त यहाँ आकर ज़हमत करें। और मैं ख़ास तौर पर जो शोबे तराजुम है, मजलिस तराजुम, उसके काम से बहुत मुतअस्सर हुआ हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें उर्दू में जो भी बाहर अरबी में दूसरी ज़ुबानों में इल्म और दूसरे और नए जदीद अलूम के बारे में भी चीज़ें हैं वो उर्दू में मुंतकिल होनी चाहिए। इसी तरह उर्दू में जो भी हमारे दीनी और दुनियावी अलूम हैं वो दूसरी ज़ुबानों में मुंतकिल किए जाएं। तो ये मजलिस तराजुम का मुझे सबसे ज़्यादा मुतअस्सर कुन काम वो लोग आए। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम मोहतमीम फैज़ान मदीना में जो हज़रात उलमा जो भी काम कर रहे हैं, जो मदनी चैनल पर काम कर रहे हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बहुत ही एक नेक काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसका फैज़ पाकिस्तान में भी फैलेगा और पूरी दुनिया में इसका फैज़ इंशाअल्लाह पहुँचेगा। मैं अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी, उनकी खिदमात को भी खराज अक़ीदत पेश करना चाहूँगा और कि उन्होंने इतनी बसीरत उनके जहन में आई कि पूरी दुनिया में, सिर्फ़ अपने इलाके में नहीं, कि पूरी दुनिया तक इस्लाम का, अमन का और मोहब्बत का पैगाम पहुँचा है। और इसमें माशाअल्लाह तंजीमें दुनिया में और ममालिक में भी
उनमें वसअत पैदा हो रही। मदनी चैनल के नाजरीन, अय्याम नहर करीब हैं। इस ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात पर तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला हुआ, जिनमें अरकान शूरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल देते हुए चरमे कुर्बानी शरीयत के मुताबिक जमा करने का ज़हन दिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वहाँ भी खाने जमा करने की तैयारियां हैं। इस तरबियती इज्तिमा में रुकने शूरा ने अहदाफ का जायज़ा लिया। जामियातुल मदीना के तलबा इस्लामी भाई इस तरबियती इज्तिमा में शरीक हुए। काम पे भी मुझको चला दे, हाँ मुझको चला दे। हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, मौला तू मेरा। दारुस्सलाम टोबा पंजाब पाकिस्तान में तरबियती इज्तिमा का सिलसिला, रुकने शूरा और जामियातुल मदीना के तलबा इस तरबियती इज्तिमा में शरीक हुए। जामियातुल मदीना फुकारा में आज जामियातुल मदीना के तलबा और साथीदारों का तरबियती इज्तिमा है, जिसमें फुकारा, साहिवाल, नागापुर, बिहारी के तलबा और तशरीफ लाए हुए हैं। जामियातुल मदीना का साथी इकराम नाज़रीन हम अलग से बैठकर कुछ मदनी कामों पर गुफ्तगू हो रही है। आज मदनी काम खुद करने और तलबा में मदनी काम किस तरह उतारा जाए, इस पर हमारी गुफ्तगू हुई है कि अपने हलकों में इलाकों में मदनी काम किया जाए। मदनी काफिले जो हैं वो सफर करवाई, इस पर गुफ्तगू हुई है। क्योंकि दाऊद इस्लामी के जामियात और मदारिस और दीगर मदनी काम पर ढेरों ढेर अखराजात होते हैं, तो कुर्बानी की खालें हमारा हदफ है, कुर्बानी की खालें जो है वो जमा की जाए। और मजीद चूँकि हमने जामियात बनाने अल्लाह की रहमत से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर, गिलगित इंशाअल्लाह और फिर दुनिया भर में अल्लाह की रहमत से हमने जामिया मदारिस बनाने हैं, इसके लिए कसीर सरमाया हाजिर होता है। पहले हमारे जामियात पर कसीर सरमाया खर्च हो रहा है, तो आज हम इस पर भी गुफ्तगू हमारी है कि हम जो मौजूदा जगह को फलत पर लाया जाए ताकि नए जामियात खोले जाए। तो मदनी चैनल के वो नाजरीन जो इस आवाज़ को सुने, उससे भी गुजारिश है कि दाऊद इस्लामी के जामियात हैं, मदारिस हैं और दीगर मदनी कामों में दिल खोल कर हिस्सा दिया करें, ताकि दाऊद इस्लामी के मज़ीद मदनी काम जो है दुनिया भर में फैल सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको दाऊद इस्लामी के साथ चलकर अमीर सुन्नत की सोच इसको आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे, अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे। ये मनाजिर मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हैं, जहाँ रुकने शूरा ने जामियातुल मदीना के तलबा को मदनी फूल दिए। मुझको चला दे, हो जाया करे याद सबक जल्द। बाबुल इस्लाम सिंध पाक अमजदी काबीना, शहर है जमजम नगर हैदराबाद पाकिस्तान और डिवीज़न भी फैज़ान जमजम। मस्जिद नाना बाबा में निगरान काबीनात ने तरबियती इज्तिमा में चरमे कुर्बानी के हवाले से अबलख घोड़े सवार रिसाले तकसीम करने का भी ज़हन दिया। मजबूत बना दे, मजबूत बना दे, उस्ताद हो माँ बाप हो अतार भी हो कोटली कश्मीर का पहाड़ी इलाका, जहाँ निगरान काबीनात ने खालें जमा करने के मदनी फूल दिए। मदीना भी दिखा दे। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे कोरंगी का कुछ इलाका, नूरियाबाद,
سائٹ وغیرہ فیکٹریز، کارخانوں اور انڈسٹریز پر مشتمل ہیں۔ وہاں دعوت اسلامی کی تنظیمی کابینات بھی ہیں، جہاں کی ایک کابینہ پاک سیدی کابینہ سائٹ کی مختلف انڈسٹریز میں فیکٹری اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ مدنی پھول ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ان مدنی حلقوں کی جانب، جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیان کیے۔ سیدی کابینہ میں ایک فیکٹری میں فیکٹری اجتماع کا سلسلہ ہے، جس میں یہاں کے کام کرنے والے اور یہاں کے جو منتظمین ہیں، چلانے والے موجود ہیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ آج ماشاءاللہ سے ہماری فیکٹری کے اندر مبلغ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا، اور اسپیشلی نماز کے بارے میں جو ہے ہمارے لیبر کو، ہمارے اسٹاف کو تلقین کی گئی، اور نماز کے بارے میں ان کو ہدایت دی گئی کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے۔ میرے خیال سے ہر مہینے جو ہے ان کو اس طرح کی دین کی اور تبلیغ کرنی چاہیے مختلف جگہوں پہ جا کر۔ یہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں سے ابتدا کی ہے، یا ان کا سفر پہلے سے جاری تھا، اور انہوں نے ہمارے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے آج یہ کیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں کچھ ٹائم نکالوں اور کچھ کر سکوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ میں بھی ضرور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری جو لیبر ہے، جو ہمارے اسٹاف ہے، انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے نام لکھوائے ہیں، اور بقرعید کے بعد انہوں نے کوئی اس طرح کی ترکیب بنائی کہ انشاءاللہ وہ بھی 12 اور 30 قافلے میں سفر کریں گے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اجتماع ہوا، یہاں پہ نماز ادا کی گئی، نیکی کی دعوت دی گئی ورکروں کو، تو اسی طرح ہونا چاہیے دوسری فیکٹریوں میں بھی، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اس حوالے سے۔ نمازیں وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، اور اپنے امام بھی دیتی ہے۔ دوسری فیکٹریوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت عام ہو، اور مدنی چینل بھی انشاءاللہ دیکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید پر مدنی چینل آپ کے لیے جو سلسلہ دار ہے، اس حوالے سے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار ہے، پیش خدمت ہے۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مدنی چینل عید قربان کے موقع پر براہ راست نشریات پیش کر رہا ہے۔ صبح 6:50 پر عید کی نماز براہ راست، عید کی نماز کے بعد بکرے کی قربانی، اور عید کے تیسرے دن اونٹ کی قربانی میں شامل ہو جائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ۔ اور صرف یہی نہیں، مدنی چینل عید منا رہا ہے IDPs، سیلاب زدگان،
खुसूसी इस्लामी भाइयों और अपनों के ठुकराए हुए अफराद के साथ आप भी मदनी चैनल के साथ ईद कुर्बान में शामिल हो जाएं और देखते रहिए मदनी चैनल। ईद ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए सबक आमोज और इबरतनाक वीडियोस शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 0315-825-2672 पर सेंड करें। कुर्बानी की खालें मदरसतुल मदीना के कारी साहिबान भी जमा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस ज़िम्न में मदनी मशवरा फरमाया मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में और इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। हमारी जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ है, हमारी जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ है। आपके पास किसी के पास दर्जा है, उस दर्जे में 25-26 मदनी मुन्ने हैं। अगर आपने ये आदत बनाई तो यकीनन ये आदत आपके मदनी मुन्नों में ट्रांसफर हो जाएगी। कोई मदनी मुन्ना कहे कारी साहब पानी पीने जाना है, यही होता है। अब अगर हमने कोई ऐसा माहौल बनाया तो वो मदनी मुन्ना फौरन सर झुकाकर पानी पीने की नीयतें करे। ये कारी साहब के पास ही होता है, कारी साहिब ही उनको मतलब तरकीब बनाते हैं। तो हमारे पास चूंकि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये शोबाजात जो कायम है, जो कुरान की तालीम के साथ साथ अखलाकी तरबियत भी देते हैं, तो अगर इन मदनी मुन्नों को अपने मदनी अमले को, बाद नाजिम है उनके पास मदनी अमला है, अगर अपने मदनी अमले को इन तमाम तर मामलात पर हम तवज्जो दिलाते रहेंगे, उनका सवाब हासिल करने की जो हिर्स है, जो लालच है, वो बढ़ती जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज बचपन में ये अगर ये अंदाज इख्तियार करेंगे तो बड़े होकर इंशाअल्लाह ये सारे आलिम नियत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ताज़ियत की मदनी खबर पेश खिदमत है ब्रेडफोर्ड यूके, जहां निगरानी काबीना की महमूद भाई से ताज़ियत का सिलसिला हुआ। इनके मामू जान मोहम्मद यूनुस के इंतकाल पर आपने ताज़ियत की। मुहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम महमूद साहब के घर पे मौजूद हैं और इनके मामू जान जिनके पिछले दिन इंतकाल हुआ, मोहम्मद यूनुस साहब का, उनकी ताज़ियत के लिए हाजिर है। इंशाअल्लाह भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अपने करीब रहमत फरमाए और बतक़ाज़ा बशरियत अगर उनसे वो ख़ता सरज़द हुई अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ी अता फरमाए और हम सब को भी अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान पाक भिटाई काबीना शहर है टंडो आदम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया के तहत दुखियारी उम्मत के लिए गमखारी इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने आने वालों को तावीज़ात दिए और हाथों हाथ इस्तिखारा भी किया, सलातुल हाजात अदा की और दुआ की। उम्मत परेशान है या नबी, तेरी उम्मत परेशान है या नबी, और किए पे पशेमान है या नबी, कर दे हमको अपनी उल्फत शाले के उम्मत चले परचमे तय्यबी या नबी 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 या नबी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये 15 दिन के बाद है कि होना चाहिए फैज़ान मदीना में। इस तरह के इज्तिमात होने चाहिए हर 15-20 दिन बाद। एक तो इससे बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून भी मिलता है इस तरह की महफिल से, और दूसरा ये है कि आप इतनी अच्छी तकरीब में बैठते हो तो आपको सवाब भी हासिल होता रहता है। मैं फैज़ान मदीना टंडो आदम में बैठा हूँ और तावीज़ात लेने के लिए ऐसे इज्तिमात हर 15-20 दिन के बाद होने चाहिए। आज फैज़ान मदीना में आया हूँ खैर बरकत के तावीज़ के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी 15-20 रोज़ में ऐसे इज्तिमात होने चाहिए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। कल के हालात ऐसे कर रहे हैं, हर आदमी परेशानी के आलम में मुब्तला है, दीन से दूरियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। ये इज्तिमा जो है तकरीबन हर 15 दिन में, महीने में, हर शहर में होना चाहिए। भी जो आज जैसे मालूम हुआ तो जो खलकत को मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो भी जिस उम्मीद लेकर आया खुदा ताला उनकी वो मुरादें पूरी करे। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا